Hello, all of you. Good morning. Today is the very interesting topic. First of all, you can see कोविड-19 कोरोना डिजीज़ के लिए जो विश्व में बड़ी स्पीड से फैल रहा है, इसलिए आप अपने आप को सेव करें, स्टे करें और घर पे रहें। चैप्टर नंबर 2 के लास्ट टॉपिक के ऊपर अपन डिस्कस करेंगे। सो टुडे इज द डिस्कस द लास्ट टॉपिक इज द कैपेसिटेंस के ऊपर है। सो प्लीज ऑल ऑफ यू स्टूडेंट बी अलर्ट एंड हम्बली रिक्वेस्ट ये वीडियो को पूरा डिटेल में देखें, क्योंकि आज का टॉपिक टुडे टॉपिक इज वेरी इंटरेस्टिंग। टुडे टॉपिक इज द बेस ऑफ द कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस की जो आपने वैल्यूज फाइंड की थी इक्वल टू E नॉट A अपॉन D, अब उसमें डाइलेक्ट्रिक और पोलराइजेशन की कंडीशन को शो करेंगे। पोलराइजेशन और डाइलेक्ट्रिक के कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए वैक्यूम कैपेसिटेंस एंड फुली इंसर्ट डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करके पोलराइजेशन की कैपेसिटी को डेवलप करके कैपेसिटेंस की फॉर्मूले को डिफाइन करेंगे और फिर एक रेशियो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रेशियो के को फाइंड करेंगे। सो प्लीज ऑल ऑफ स्टूडेंट बी अलर्ट एंड ऑल ऑफ यू प्लीज कैन सी इन माय स्क्रीन। फर्स्ट ऑफ ऑल यू सी इन माय थंबनेल। सो टॉपिक इज द इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। Effect of dielectric capacitance, and you can see this figure is the capacitance there, and there is the capacitance and the fully insert dielectric, and you can see this figure there negative positive negative positive negative positive negative positive. It means polarization is developed. So polarization and electrical field both are the same direction. Surface density is the sigma, and here is the developed sigma p. Polarization sigma and surface density is denoted by sigma p. Okay, so please all of students write down this topic and draw this figure. Okay. Yes, first point, the parallel plate capacitor is modified when a dielectric is present. Full stop. As before, we have two large plates, each of area capital A, separated by distance small d. Charge on the plate plus minus Q, capital Q. Full stop. Corresponding the charge density plus minus sigma. Okay, plus minus sigma, and sigma is the Q upon A. Sigma is equal to capital Q upon A. Okay, now second point is the very interesting. You can see electric field is vacuum. First of all, vacuum capacitance की अपन not insert the dielectric, only for the vacuum point में. So dielectric electrical field in the capacitance between the plate E naught is equal to sigma upon E naught. Potential difference V naught is equal to E naught D. The capacitance C naught is equal to Q upon V naught is equal to E naught A upon D. Now equation number 2. This point is created by the vacuum, and already write down इस पॉइंट को हमने पहले से ही
ऑलरेडी जो है वीडियो लॉन्च कर चुका हूँ वैक्यूम के अंदर, इसलिए C naught is equal to E naught A upon D. Now third point is the very point, interesting point is to create the case. So consider a dielectric inserted between the plate fully occupy the inverting region. You can see this figure. The electrical field in the dielectric, the corresponding to the case when the net surface charge density E is equal to sigma minus sigma p. Sigma p is denoted by the polarization surface charge density. So net surface charge density is equal to sigma minus sigma p upon E naught. Be carefully write down. This point is very interesting and very important. Okay, then the potential difference V is equal to E naught D. Okay, there is the create E, so sigma minus sigma p upon E naught D. Okay, write down potential difference across the plate. So V is equal to ED is equal to sigma minus sigma p upon E naught D. Since sigma minus sigma p is directly proportional of sigma इनकी surface charge density, so sigma minus sigma p proportional sign are removed to sigma upon k. K is the dielectric constant. Where K is the dielectric constant, so potential difference, so that potential difference V is equal to, where K is the dielectric constant, and K's value is greater than 1. So sigma minus sigma p replaced by sigma d upon E naught k. Here is the equation number 4. Write down. Where sigma is equal to surface charge density, sigma is equal to Q upon A is the total equation number 4. Okay, then the capacitance, then कैपेसिटेंस, फर्स्ट ऑफ ऑल कैपेसिटेंस फाइंड आउट इन वैक्यूम. अब जो कैपेसिटेंस हम फाइंड कर रहे हैं वो फुली इंसर्ट द डाइलेक्ट्रिक के अंदर. सो C इज इक्वल टू Q अपॉन V. ओके, सो C इज इक्वल टू Q की वैल्यू को पुट कर दीजिए. Q एज इट इज, V की वैल्यू को पुट करते हैं Q D A E naught K
Now capital Q are cancel out, so C is equal to K E naught A upon D का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हो गया. ओके, राइट डाउन. Okay, there C naught is equal to E naught A upon D, so C is equal to K E C naught, K is equal to C upon C naught. Okay, first case are create, first result are find out. Equation number 5, K is equal to C upon C naught. K is the dielectric constant. Write down carefully. Now again, new concept. Now again, C is equal to K E naught A upon D, where K upon E naught is called, write down, where K E naught is called the permeability of the medium, the permeability of the medium, and is denoted by E naught. So E naught is equal to, so E naught is, so denoted by E epsilon. Now K is equal to E upon E naught. Okay, properly write down. Then vacuum case, K is value 1, so E is equal to E naught, and dielectric insert, then the K is value is the greater than, so K is equal to E upon E naught, C upon C naught is the, also find out this result. Both result is very important because dielectric fully insert, not partially, fully insert, then the K is equal to E upon E naught, and C upon C naught value is the find out. Okay, carefully write down, all of you. Okay, next topic in, you can see in my thumbnail, dielectric not insert a fully partially, then the capacitance value. So write down second point. Second heading is the capacitance of parallel plate capacitor with dielectric slab. See dielectric slab, there is the capacitance and dielectric slab this type.
dielectric slab. Okay, electrical field. Write down. Here is the positive plate. Here is the negative plate. So electrical field is this type, positive to negative. Okay. Distance is the small d, separate distance is the small d. Surface area is a capital A. Here is the negative sign. Here is the positive sign. Okay. Now create the electrical field. Create the electrical field. E is equal to E naught minus EP. Okay. This direction. Yes, first point, capacitance of the parallel plate capacitor of parallel of plate area capital A and plate separate small d with vacuum between the plate is given by C naught is equal to E naught A upon D. Write down the electrical field. Electric field E is equal to sigma upon E naught. Write down. Sigma is equal to Q upon A. All our values are in vacuum case. Okay. Then insert vacuum case. Now second point. When the dielectric slab of the thickness T is less than this thickness is the T. So T is less than small d is placed between the plate. The electrical field E naught polarized the dielectric and the induced charge of the dielectric. Then induced field is given by, this induced field is developed by the polarization. So EP is equal to sigma P upon E naught, या P upon E naught, because the P is the polarization, sigma P is the polarization of the surface charge density. Okay, so write down, be carefully. The net electrical field inside the dielectric is net electrical field
first of all net surface charge density you can see the first case. Then in second case the net electrical field, so E is equal to E naught minus sigma p is directly proportional of the electrical field, so E minus EP is equal to E upon K. Write down. E naught upon K. This equation number is the first, where the K is the dielectric constant of the slab. Next point, so that the between the capacitor plate the field E exert over a distance small t and field E naught exert over the remaining distance d minus t. Okay, d is the greater than d maximum, small t is minimum, so resultant is the d minus t is the main point. Okay, d minus t. Then potential difference between the capacitor plate, main point potential difference. Potential difference is very interesting. V ED. There are created two ED. E d minus t and ET. Okay. this गैप का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो E d माइनस टी, और स्लैब का डायरेक्ट स्लैब का है वो E t, जो आपके पास में पोटेंशियल डिफरेंस को शो कर रहा है. राइट डाउन. देयर इज द E naught. ओके, देयर इज द E naught, देयर इज द ET. ओके, E naught d minus t plus ET is there is the available electrical field E. So ET is the potential difference and E naught d, there is the gap के अंदर जो है इलेक्ट्रिकल फील्ड जो है पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा वो E naught E d minus t. दोनों को हमने ऐड कर दिया, हमारे पास में रिजल्टेंट आ जाएगा. ओके, तो ये आपके पास में पोटेंशियल डिफरेंस आ गया. अब आप चाहें तो अपनी वैल्यूज को पुट कर सकते हैं जो अभी आपने फाइंड आउट की थी. कौन सी वैल्यूज को पुट कर सकते हैं? अभी रिजल्ट निकाला आपने. अगेन सिंस, मैं आगे लिखा हूं सिंस E is equal to E minus EP is equal to E upon K. ये आपके पास में रिजल्ट आया है. इस वैल्यू को आप चाहे तो पुट कर सकते हैं, इसके ऊपर E naught है, पुट कर सकते हैं. सो B is equal to E naught D minus T plus E naught K T. ओके, वैल्यूज को पुट कर दिया, लिख लीजिए. मैं एक एक स्टेप को बहुत केयरफुली राइट डाउन करवा रहा हूँ, इसलिए आराम से लिखें क्योंकि ये केस आपकी बुक में नहीं है और सीबीएसई के अंदर सब पढ़ना पड़ता है हमको, इसलिए ध्यान से इसको देखें. हाँ, टेकिंग द कॉमन, हम जो कॉमन ले रहे हैं वो सिंपल सा है. V is equal to E naught को कॉमन ले लीजिए, D minus T plus T upon K. ये हमारे पास में पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यूज आ जाएगी. हमारे पास में E naught की वैल्यू पहले से ही है. E naught की वैल्यू को मैं यहाँ साइड में लिखा हूँ. E naught की वैल्यू मेरे पास में थी सिग्मा अपॉन E naught, इसको मैंने Q अपॉन A E naught के फॉर्म में लिखा हुआ है. यदि ये वैल्यू पुट करो मैं यहाँ पर Q A E naught D minus T plus T plus K. ओके, ये आपके पास में एक वैल्यूज आ गई है E naught की.
इस वैल्यूज को आप कैपेसिटेंस में कन्वर्ट कर लीजिए, राइट डाउन कर लीजिए मैकेनिज्म, लेकिन दैट द कैपेसिटेंस हम कैपेसिटेंस के फॉर्म में लिखेंगे तो ऑब्वियसली कैपेसिटेंस का फॉर्म हमको मालूम है, Q अपॉन V का फॉर्म है। यदि मैं इस वैल्यूज को पुट करता हूं तो मेरे पास में जो वैल्यूज आएगी उसको मैं यहाँ पर राइट डाउन करता हूँ C Q, और मेरे पास में जो ये वैल्यूज है, ये जो फॉर्म है इसको इस टाइप से लिख लीजिए। यदि कहीं किसी को प्रॉब्लम होता है D माइनस टी प्लस टी अपॉन के, और अपॉन में ध्यान से देखें, अपॉन में ए ई नॉट है, इसलिए मिस्टेक नहीं होना चाहिए। Q से Q कैंसिल आउट कर दीजिए और C की वैल्यू हमारे पास में इस टाइप से आ जाएगी। ये आपके पास एक रिजल्टेंट आ गया है, बहुत अच्छा रिजल्ट जो इसको लिखें। ये रिजल्ट काफी शो कर रहा है कि T D हो जा रहा है, T और D यानी कि ये फुली चार्ज हो जा रहा है। जैसे ही फुली चार्ज हो जाएगा तो T रिप्लेस बाय D कर देना, आपके पास में जो पहला केस है वो क्रिएट हो जाएगा। इसलिए मैंने ये केस आपको करवाया, ये जनरल केस है ये, ओके। यदि T की जगह पर और कुछ वैल्यू आती है जिसके पास में हमारे पास में T की थिकनेस, ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब की थिकनेस है, तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब की थिकनेस को हम यहाँ पर शो कर सकते हैं। सपोज 1 आ जाए, सपोज 0 आ जाए, सपोज इंफिनिटी आ जाए, तो उसके हिसाब से हमारे पास में रिजल्टेंट आ जाएगा। तो ये रिजल्ट काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि एमसीक्यू में इस टाइप के ही क्वेश्चंस पुट अप होंगे अब। Okay, properly write down, all of you. ओके, थर्ड जो मैं कीबोर्ड देने जा रहा हूँ मेन कीबोर्ड है, इसी डाइलेक्ट्रिक स्लैब के लिए है कि डाइलेक्ट्रिक स्लैब को जब इंसर्ट करते हैं तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट करते हैं वो कैपेसिटेंस क्या के पहले से चार्ज है या डिस्चार्ज है। यदि डिस्चार्ज है तो उसको चार्ज करना पड़ेगा बैटरी से, यदि बैटरी से चार्ज है उसमें डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट है तो कौन सी चीज है, कैपेसिटेंस इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, पोटेंशियल इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, या कौन कौन सी चीजें इसमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का केस होगा। तो वेरी इंटरेस्टिंग है, ऐसे एमसीक्यू में काफी बार पूछा जाता है। ये किसी कैपेसिटेंस को बैटरी से चार्ज करने के बाद यदि डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करते हैं तो क्या क्या आपके पास में रिजल्ट आएंगे। ऐसी कुछ डिटेल चीजें जो आपके एग्जाम के अंदर, एमसीक्यूज के अंदर और अदर कंपटीशन एग्जाम के अंदर मेन रहेगी, उसको राइट डाउन कर लीजिए। इसके लिए एक छोटा सा नोट डालें आप अपनी कॉपी में, ओके। ये नोट आपके लिए काफी मेन है, इस नोट के लिए ही आपको भी अलर्ट रखना है। चैप्टर नंबर 2 में अब तक जो भी पढ़ा है उसका एक नोट आ रहा है कैपेसिटेंस के लिए। ये कैपेसिटेंस के लिए जो नोट आ रहा है वो अब इस टाइप से ही एमसीक्यू आने वाले हैं। पहला प्लेट कैपेसिटर को स्टडी किया, अब ये जो क्वेश्चंस हैं ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं ये अब मर्ज होकर के बड़े क्वेश्चंस के फॉर्म में आएंगे। इसलिए पहले इस मैकेनिज्म को राइट डाउन कर लीजिए और थर्ड नेक्स्ट नोट आगे पॉइंट डाल लीजिए। पॉइंट डालना नोट के अंदर, द इफेक्ट ऑफ द डाइलेक्ट्रिक ऑन द वेरियस पैरामीटर। वेरियस पैरामीटर और इस टाइप से आप एक टेबल बना लीजिए, मेन है टेबल। ओके, एक साइड पर टेबल के इस साइड में लिखिए फर्स्ट में बैटरी डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द कैपेसिटेंस,
बैटरी डिस्कनेक्टेड, बैटरी कनेक्टेड with कैपेसिटेंस। ओके, एक में बैटरी से डिस्कनेक्ट करेंगे, एक में बैटरी से कनेक्ट करेंगे। जहां पर हम डिस्कनेक्ट कर रहे हैं वहां पर बैटरी कैपेसिटेंस पहले से चार्ज है, और जहां हम कनेक्ट करेंगे वहां पर कैपेसिटेंस डिस्चार्ज है, उसको चार्ज किया जाएगा। अब इन सब के अंदर जो है इफेक्ट इसका शो करना है डाइलेक्ट्रिक का, ये ध्यान से सुनना। मैं किसके इफेक्ट को शो कर रहा हूं, मैं नोट द इफेक्ट ऑफ द डाइलेक्ट्रिक ऑफ द वेरियस पैरामीटर। इस पैरामीटर को शो करने जा रहा हूं। वो पैरामीटर आपके सामने है, पोटेंशियल डिफरेंस, सेकंड कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रिकल फील्ड, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इस टाइप के पैरामीटर पर हम डिस्कस करने वाले हैं। इस टेबल के अंदर एक कीबोर्ड बनाने जा रहा हूं जो आपके पास में है। फर्स्ट लिख लीजिए चार्ज। जब आपके पास में डाइलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होगा तो चार्ज जो है वो आपका कांस्टेंट रहेगा। क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। पोटेंशियल डिफरेंस लाइन खींच दीजिए। पोटेंशियल है वो आपका डिक्रीज हो जाएगा, V/V0 हो जाएगा। अब V/V0 का मीनिंग क्या हुआ? ये V0 है वो वैक्यूम का है और ये V है वो डाइलेक्ट्रिक स्लैब का है। इट मींस यहाँ पर V0 जो है वो K टाइम्स ऑफ द V हो जाएगा। यानी कि V0 यानी कि डाइलेक्ट्रिक को जैसे इंसर्ट किया गया है तो उसमें पोटेंशियल डिफरेंस जब बैटरी से डिस्कनेक्टेड है यानी कि कैपेसिटर चार्ज है तब उसका पोटेंशियल डिफरेंस K टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। ओके, और किसमें? मीडियम के अंदर। और यदि मैं कहूं कि मीडियम में डाइलेक्ट्रिक में तो ये वो डिक्रीज हो जाएगा। यहाँ पे ये पॉइंट ध्यान से देखना है आपको, राइट डाउन कर लीजिए प्रॉपर्ली। एक एक पॉइंट को ध्यान से राइट डाउन करना। जब आपका पोटेंशियल डिफरेंस का केस आ गया है कि इस टाइप से है तो इलेक्ट्रिकल फील्ड का भी सेम ही रहेगा, E0/K, क्योंकि हमने आपसे कहा था कि हमारे पास एक बहुत फेमस रिजल्ट आया था। यदि आपको थोड़ा बहुत याद हो तो पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू E और D का कॉन्सेप्ट आता है तो E इज इक्वल टू VD हम लिखते हैं, V/D का कॉन्सेप्ट लिखते हैं। ये हमारे पास में एक फेमस रिजल्ट है। आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा जिसके लिए इसी फर्स्ट सेकंड चैप्टर के जो पोटेंशियल डिफरेंस का कांसेप्ट लाया था मैं, ठीक है, उसके अंदर ये चीज आई थी। तो जहां पर पोटेंशियल डिफरेंस की जो वैल्यू आएगी वही आपकी इलेक्ट्रिकल फील्ड की वैल्यूज के फॉर्म में आएगा। तो यहाँ पर E0 भी K टाइम्स इंक्रीज होगा। यदि पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है तो इलेक्ट्रिकल फील्ड भी इंक्रीज होगा। केस ध्यान रखना, बैटरी डिस्कनेक्टेड विद द कैपेसिटेंस, यानी कि कैपेसिटेंस पहले से ही चार्ज ले रहे हैं हम। थर्ड पॉइंट है हमारा यहाँ पर C, कैपेसिटेंस K टाइम्स C0 हो जाता है, जो कि हमने अभी फाइंड किया है। जब फुली डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट हो जाता है तो वो K टाइम्स जो है किसके अंदर? डाइलेक्ट्रिक के अंदर। देखो डाइलेक्ट्रिक के अंदर पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है, डाइलेक्ट्रिक के अंदर इलेक्ट्रिकल फील्ड इंक्रीज हो रहा है, पर कैपेसिटेंस इंक्रीज हो रहा है। यदि मैं यूं कहूं, मैं इसको इस टाइप से बोलूं, मीडियम का केस बोलूं तो मीडियम के अंदर जब डाइलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कैपेसिटेंस इंसर्ट है तो मीडियम जो है वो K टाइम्स हो जाता है इंक्रीज। पोटेंशियल डिफरेंस का जो मीडियम है K टाइम्स इंक्रीज
पोटेंशियल इलेक्ट्रिकल फील्ड का मीडियम k टाइम्स इंक्रीज और कैपेसिटेंस मीडियम जो है k टाइम्स डिक्रीज हो जाता है। ये ध्यान रखना, ये मेन पॉइंट है, इसलिए घुमा फिरा के पूछा जाता है। और पोटेंशियल एनर्जी जो हमारे पास में कैपेसिटेंस है वो कलेक्शन ऑफ चार्ज है, तो कलेक्शन ऑफ चार्ज का मतलब ये पोटेंशियल एनर्जी को क्रिएट करेगा। ऐसा मैंने आपके सामने वीडियोस लॉन्च किया था जिसमें सरफेस एनर्जी डेंसिटी का पॉइंट निकाला था मैंने, तो उसको आप ध्यान से वापस देखना, वो मेन रहेगा। क्योंकि कैपेसिटेंस है वो कलेक्शन ऑफ चार्ज है, और कलेक्शन ऑफ चार्ज का मतलब है वो सोर्स ऑफ पॉइंट को कलेक्ट करता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस को जो है पोटेंशियल डिफरेंस को वो कलेक्ट करने का काम कर रहा है, और इसलिए वो कैपेसिटेंस जो है वो एनर्जी पैकेट है। तो हमारे पास में U इज इक्वल टू हमारे पास में जो पोटेंशियल डिफरेंस की जो वैल्यू आएगी वो पोटेंशियल डिफरेंस डाइलेक्ट्रिक के केस के अंदर जो है पोटेंशियल डिफरेंस जो है किसकी डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमारे पास में U नॉट K हो जाएगी। मतलब डाइलेक्ट्रिक इनसाइड द पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज होगा, लेकिन मीडियम का केस बोले तो वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा। अब वापस बोल रहे हैं चार्ज कांस्टेंट रहेगा, चार्ज वेरिएबल नहीं होगा। अब हम यहाँ पर बैटरी कनेक्टेड विद द कैपेसिटेंस, जो पैरेलल प्लेट है उस पैरेलल प्लेट को यदि हम बैटरी से कनेक्ट कर देवे तो हमारे पास में क्या क्या चीजें इंक्रीज होगी, कौन सी चीजें कांस्टेंट आएगी। तो Q इंक्रीज होएगा क्योंकि हम इसको क्या कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं, तो सोर्स ऑफ एनर्जी इंक्रीज होगा, वो सोर्स ले रहा है, चार्ज ले रहा है। पोटेंशियल, ये पोटेंशियल आपका कांस्टेंट रहेगा, पोटेंशियल इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का काम नहीं करेगा। और हमने आपको कहा था कि जब बैटरी से बैटरी कैप्ट, यहाँ पर एक चीज लिख देना थोड़ा सा, कैप्ट बैटरी कैप्ट कनेक्टेड विद अक्रॉस पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस। ओके, तो आपको क्या लगा यहाँ पर कि चार्ज जो है k टाइम्स इंक्रीज हो गया, पोटेंशियल कांस्टेंट हो गया, किसमें, जब आपने इसको बैटरी से कनेक्ट किया गया कैपेसिटेंस को, कैपेसिटेंस की प्लेटों को। ओके, सेकेंड आप देखिए आपके पास में पोटेंशियल, हमने आपसे बोला है कि पोटेंशियल कांस्टेंट है, तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिकल फील्ड भी कांस्टेंट होगा, नो डाउट। ओके, यहाँ पर भी देख लीजिए ये डिक्रीज हो रहा है तो इलेक्ट्रिकल फील्ड भी डिक्रीज हो रहा है, यदि मीडियम में क्या इंक्रीज हो रहा है तो इलेक्ट्रिकल फील्ड भी मीडियम में इंक्रीज हो रहा है। ये चीजें ध्यान से देखने की है। और हमारे पास में कैपेसिटेंस का रोल जो आ रहा है वो C = K E नॉट फॉर्म आ रहा है, और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्म आ रहा है वो KU टाइम्स, यानी कि ये पोटेंशियल इंक्रीज होगा क्योंकि चार्ज इंक्रीज हो रहा है। सिंपल सा कंसेप्ट है, क्योंकि U की जो वैल्यूज है उसके अंदर हमारे पास में जो आई थी वो ½ CV², याद हो तो, या Q²/2CV इस टाइप से फॉर्मूला बना था। तो जब हमारे पास में चार्ज इंक्रीज होगा तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिकल फील्ड कांस्टेंट रहेगा, कैपेसिटेंस भी इंक्रीज होगा। बैटरी से जब डिस्कनेक्टेड है, पहले से कैपेसिटेंस चार्ज है, तब उसका चार्ज कांस्टेंट रहेगा, वेरिएबल नहीं रहेगा। पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिकल फील्ड k टाइम्स डिक्रीज होगा, यानी और मीडियम में बात करें तो k टाइम्स इंक्रीज होगा। कैपेसिटेंस है वो भी आपके k टाइम्स इंक्रीज होगा, डाइलेक्ट्रिक के अंदर मीडियम में डिक्रीज होगा, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी जो है खर्च हो रही है, इसलिए वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, लेकिन इसमें पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। तो ये कीवर्ड है जो मैंने एक स्मार्ट कीवर्ड आपके सामने रखा है, ये कैपेसिटेंस के वेरियस क्वेश्चंस को सॉल्व आउट कर रहा है, क्योंकि एमसीक्यू का जो पैटर्न है सीबीएसई ने जो डेवलप किया था, इस टाइप के आपसे पूछा जा सकता है कि बैटरी इज डिस्कनेक्टेड विद द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, देन द पोटेंशियल एनर्जी इज द इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग। तो आपको ये फॉर्मूला वहां पर यदि मालूम है तो आप कह सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस जो हमारे पास में जो एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू है वो डाइलेक्ट्रिक के केस में कैसी होगी,
तो डिक्रीज होगी, और मीडियम के केस में क्या होगी, तो इंक्रीज होगी। हम यहाँ पे इस चार्ट से, इस फ्लोर चार्ट से हमें आप उस आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, सो प्रॉपर्ली इस चार्ट को आप ड्रॉ कर लीजिए, राइट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपी में, नोट में। मैंने आपसे पहले बोला इसके टॉपिक का हेडिंग है इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक विद वेरियस पैरामीटर। ये पैरामीटर मैंने आपको शो करवा दिया, 2 केस शो करवा दिए। ये सेकंड चैप्टर के सारे पॉइंट मैंने कवर कर दिए हैं, कोई भी पॉइंट अब मेरे से बचा नहीं है। फिर भी कोई पॉइंट आपके ध्यान में आ रहा है कि ये पॉइंट है जो कि आपने नहीं पढ़ाया है सर, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके भेज देना, मैं आपके उस पॉइंट को क्लियर कर दूंगा। थैंक यू, टेक केयर इन योर हेल्थ। मैं हर बार वीडियो में बोल रहा हूँ कि कोविड-19 जो कोरोना वायरस है वो पूरे इंडिया के अंदर भी फैल रहा है, और साथ साथ राजस्थान के अंदर भी है। पूरे वर्ल्ड का ये एक महामारी फैली हुई है, जो सिर्फ आपको ये कह रही है कि स्टे एट होम, और इसके डिजीज़ का वैक्सीन अभी डेवलप होने में टाइम लग रहा है, इसलिए आप घर पे ऑनलाइन क्लासेस पढ़ते रहे। मैंने इंडिया के बहुत बार स्टडी, इंडिया के जो मैप को देखता हूँ तो महाराष्ट्र के अंदर, तमिलनाडु के अंदर जो है, इस साइड के अंदर जहाँ पर जो साउथ इंडिया है वहाँ पर मैक्सिमम कोरोना वायरस बढ़ रहा है। गवर्नमेंट काफ़ी अच्छा स्टेप ले रही है, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है। हम सिर्फ इतना ही काम करें, स्टे द होम। जरूरत पड़े तो आप बाहर जाएं, ऑब्वियसली जाएं तो मास्क लगा के जाएं। आने के बाद में अपने हैंड को जो है आप सोप से आराम से साफ कर दें, क्योंकि एक सोप है जो कि प्रोटीन से बने हुए इस वैक्सीन को की चैन को तोड़ सकता है, इसलिए आराम से उसको हैंड वॉश करें। फिंगर से इस साइड से पूरा साफ कर दें हैंड वॉश को साफ करने के बाद में, मास्क को भी साफ करने के बाद में ही अपने अदर मटेरियल को टच करें। मैं आपसे एक बार फिर गुजारिश कर रहा हूँ कि सुरई में भी कोरोना वायरस फैल रहा है, सरकार और विधायक साहब बहुत कर्मठ होकर के काम कर रहे हैं, इसलिए वे तहे दिल से उनको धन्यवाद कि सुरई के लिए इतना कर रहे हैं। लेकिन हमारे उनके साथ में एक ही जो वो हमसे एक ही कह रहे हैं कि आप घर पे रहें, ओके, बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी हो तो बाहर निकलें। आज शायद सुरई का आंकड़ा हो सकता है शतक लगाए, मैं तो भगवान से दुआ करूँगा कि वो शतक नहीं लगाएं, ओके, क्योंकि ये डिजीज़ के अंदर क्वारंटाइन रहना पड़ता है, 15 दिन 14 दिन क्वारंटाइन रहना पड़ता है, एक बंद कमरे के अंदर रहना पड़ता है। फिर जाकर के इस डिजीज़ के जब रिजल्ट नेगेटिव आते हैं तब जाकर के उसकी लाइफ पॉजिटिव बनती है। यदि पॉजिटिव रिजल्ट आ जाते हैं तो उसकी लाइफ नेगेटिव बन जाती है। ये यहाँ पर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का खेल है। मैं फिजिक्स की लैंग्वेज में बात करूँ तो यहाँ पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का खेल है। यदि रिजल्ट पॉजिटिव है तो लाइफ नेगेटिव होगी, यदि रिजल्ट इंक्रीज हो रहा है तो लाइफ डिक्रीज हो रही है यहाँ पर, और यदि लाइफ इंक्रीज हो रही है तो रिजल्ट डिक्रीज हो रहा है। इस टाइप के ये रिजल्ट है, इसलिए यहाँ पर ध्यान से अपने को देखना है कि हम जब भी बाहर आ रहे हैं तो इस टाइप से मास्क पहन के जा रहे हैं। गवर्नमेंट ने जरूर सबको बाउंड करने के लिए एक चालान काटने का प्रोसेस रखा है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी नहीं है, वो सिर्फ आपके लिए ही है कि आप उसको उससे देखें, डरें और आप मास्क पहन के जा रहे हैं, वापस आकर के हैंड वॉश करें। ये थोड़े बहुत अवेयर करने की गवर्नमेंट की जो स्कीम है इसको फॉलो करें। ओके, थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और मेरे लाइक कोई काम हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें, अच्छे कमेंट पास करें। ये वीडियो आप पूरा देखें। थैंक यू।